technology program at University of Pennsylvania with highest honor. She also holds the joint degree in economics and computer science engineering from the University of Murray. राधिका मैम currently serves on the board of MFI, जैसे मैंने आपको बताया, Young Presidents Organization Mumbai. She is also awarded as 40 under 40 award by Economic Times. She is one of the most powerful businesswomen by Business Today and Fortune recognized. She is also the top voice for LinkedIn. Right? So अगर possible रहा तो एक presentation मैडम के लिए भी बना सकते हैं, right? But without wasting much of the time, we are short of time, so I'll straight invite Radhika ma'am to guide us on the investment. 10 on 10 is the session. उन्होंने कुछ इंडिया के बारे में, इंडिया में क्यों निवेश करना चाहिए और how we will be ahead in next 10 year maybe, उसके बारे में she will throw light. So over to Radhika ma'am, and thank you so much for sparing your valuable time, ma'am, to enlighten our all the investors and distributor fraternity, partners fraternity. Though you are one of the very frequent speaker at our forum, you spare such time. So I again welcome you, ma'am, to this session, and thanks a lot again for sparing this time. Over to you, ma'am. Good evening, and very happy to be here. I'm just opening the screen as we talk, and I assume that my screen it's visible now fully. Yeah, it's coming now. Okay, wonderful. Yes, it's visible, but not in the full evening. screen mode. Yeah, it is in full screen. It'll just come in full screen. Okay. So, okay. Good evening to all the NJ partners. Bhavishji, thank you for the very warm introduction. NJ partners के साथ, as clients के साथ, as you said, मैंने बहुत बातें की हैं, लेकिन हमेशा बात करना अच्छा लगता है. So it's always wonderful to do something for the NJ family. तो मुझे बड़ी खुशी हुई. जब मैं सोच रही थी कि ये जो आपका क्लासरूम कॉन्सेप्ट है, जिसमें नॉलेज का जिक्र होता है, हम क्या बात करें, there were multiple thoughts in my mind, and I feel कि मार्केट जैसी चीज की जो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, it is something we talk about a lot, but I wanted to give you a slightly different perspective today, because मुझे लगता है कि as investors a lot of our time is spent worrying about the short term. मार्केट आज क्या करेगा, मार्केट कल क्या करेगा, and in that we lose perspective on India in the long term. हाल ही में अभी G20 summit हुआ है, and we've seen so much buzz and so much action, and it is worth also in a classroom learning a little bit more about the unknown facts of our country and our country's industries. So I hope over the next 30-40 minutes that is something that I am able to do. This presentation, ये जो मैं बातें कर रही हूँ, they are actually very important to me personally, because while I am someone जिसका काम है, as you said, selling mutual funds, selling SIPs for a living, I am also the daughter of a Indian diplomat. मेरे father का retiring title was Bharat के राजदूत, and he joined the foreign service in 1976 and he retired in 2010. और उनके करियर के दौरान हमने एक बदलते हुए हिंदुस्तान को देखा. अब जब हम लोग, मुझे याद है, स्कूल जाते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल. एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन नाइजीरिया, और वहाँ मैं एक इंटरनेशनल अमेरिकन स्कूल में जाती थी, और मेरे क्लासमेट्स उस टाइम पे मेरे से पूछते थे कि आप इंडिया से हैं, आप एलिफेंट पे स्कूल जाती हैं. एंड जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, उनको शायद ये बात अजीब लगे कि ये कह क्या रही है, कि हिंदुस्तानियों के बारे में लोग ऐसे सोचते थे कि वो एलिफेंट पे स्कूल जाते हैं, स्नेक चार्मर का ट्रिक करते हैं. एंड दिस वाज इंडिया एज सीन बाय फॉरेनर्स इन द 1990s, जब आईटी बूम हुआ नहीं था, पोखरान हुआ नहीं था, लोग हमें ऐसे देखते थे. कट टू व्हाट वी सी इन G20 today, when the Prime Minister of Japan's wife is standing next to our president, wearing a sari, when world leaders have declared this one of the most successful G20s. देश ने बहुत प्रोग्रेस की है, देश ने बहुत तरक्की की है, और सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की नहीं की है, एक परसेप्शन की भी तरक्की की है. तो आज मैं आपको 10 ऐसे फैक्ट्स
अपने देश के बारे में बताना चाहती हूँ, कुछ जिनसे आप वाकिफ हैं. सम यू मे नो, some you may not know. I think they will be very interesting. The first one I want to tell you about is a funny coincidence. Recently, Tim Cook was in India, and if you remember, Bombay got the first Apple store. पहला Apple store Bombay में खुला 2023 में. You know what is interesting? I would ask many of you who are listening to guess कि चाइना में पहला Apple store कब आया? It came in 2008. China got its first Apple store in 2008, India in 2023. Interestingly, China की इकोनॉमी जब से एप्पल स्टोर आया, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द एप्पल स्टोर, 4 गुना वहां से बढ़ी है. द सिमिलैरिटीज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप आज की तारीख में देखें तो हिंदुस्तान का पर कैपिटा जीडीपी on average is about $2,700. Per capita GDP in India today is $2,700 US. Interesting fact. In 2007, around when the Apple store opened, China का भी per capita GDP was $2,700. Very similar to where we are today. China benefited from a big boom in exports, which we are seeing in electronic goods today. China benefited from a very young population. Demographic dividend means कि आपकी population में there are more working and productive people than old people or children. China had a very young population at that point in time. आज के दौरान China की इतनी young population नहीं है. Today India's biggest advantage is its demographic dividend. हमारे median age, हमारी जो median age है वो 28 साल की है. China में एक period of, I think कुछ background noise आई है, so someone might be. Ma'am, the slide is not moving actually. Slide should be moving. It's not moving? No. I'll try again. कौन सी slide दिख रही है आपको? First slide ही दिख रही है. India 10 अच्छा, on let 10. me try and share this and redo this. I don't know why it's doing this. Sorry about that. Let me try and share. One sec. Can you see the new slides? Not yet. Yeah, Can you now see? it's coming. Okay, let me Yeah. just check. if it Stark is moving. similarities. हाँ. Yeah. Is it moving now? Yeah, now moving. On the second अच्छा, point. Let me see. Full screen में try करते हैं एक बार. Sorry about that. No problem. ये एक स्लाइड है. अब स्लाइड शिफ्ट हुई है? China 2007, India 2023. नहीं, एक Stark स्लाइड पहले similarities. नहीं हुई है. शायद फुल स्क्रीन मोड में कोई प्रॉब्लम है. माय सजेशन है मैं ऐसे ही प्रेजेंट कर लेती हूँ, No फिर problem. आपको No प्रॉब्लम. problem. Visible है. No problem. हाँ, आई थिंक इट्स क्वाइट विजिबल. Yeah. Okay, so I'll just go here. So a few things. मैं similarities की बात कर रही थी. मैंने demographic dividend की बात की. China also benefited from a period of very high credit growth. Credit में बहुत growth हुआ, and China and India is seeing that credit growth. Finally, most important thing, China benefited from very low labor cost. Manufacturing की cost उस दौरान बहुत कम थी, और आज की तारीख में हिंदुस्तान की लेबर कॉस्ट एक्चुअली चाइना से कम है. तो सिमिलैरिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है. तो ये थी मेरी पहली कहानी. दूसरा मैं जिस चीज का आपको जिक्र करना चाहती हूँ इज कि जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हम ऑफन इंडिया को एक नजरिए से देखते हैं. वी सी इंडिया एज अ कंट्री जिसका शायद 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी का साइज है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है. लेकिन असल में एक देश में बहुत अलग अलग देश हैं. इन वन कंट्री देर आर मेनी डिफरेंट कंट्रीज. एंड टुडे व्हाट आई वांट टू शो टू यू इज अ पर्सपेक्टिव ऑन 3 इंडियाज. तो सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है दैट इज रिच इंडिया. रिच इंडिया में आमतौर से हम जो लोग हैं इस कॉल पे हैं जो बात कर रहे हैं, वी रिप्रेजेंट द टॉप 120 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया, और हमारा कंट्रीब्यूशन है 1.4 ट्रिलियन ऑफ द जीडीपी. 120 million people make up 1.4 trillion of the GDP. And actually अगर आप rich India को देखें, it is very similar.
it is very similar in nature to a developed country. इसका जीडीपी पर कैपिटा $12,000 है। यहाँ लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, जो निवेश करते हैं, जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन एंजॉय करते हैं। दिस इज रिच इंडिया। द सेकेंड इंडिया इज व्हाट आई कॉल अस्पायरिंग इंडिया। इसको आप कह सकते हैं इंडिया इन द वेटिंग। इट इज द नेक्स्ट 100 मिलियन पीपल जिनका जीडीपी पर कैपिटा $3,000 है। और ये वो लोग हैं जो शायद अपना पहला बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, जो शायद अफोर्डेबल हाउसिंग के कस्टमर हैं, जो स्कूटर से गाड़ी पे माइग्रेट कर रहे हैं। And finally, the last bit of the population is this very big mass of what I call growing India, 1,200 million people who account for 1.8 trillion of the GDP. अब इस स्लाइड पे मेरे हिसाब से दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो हम सब लोग निवेश बाजार के बिजनेस में हैं, एंड एक्चुअली अगर आप तीनों इंडिया देखें तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रिच इंडिया को देखें तो कंजम्पशन की स्टोरी है, कैपिटल मार्केट की स्टोरी है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की स्टोरी है। अगर आप अस्पायरिंग इंडिया को देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टोरी है, ऑटो की स्टोरी है, बैंकिंग की स्टोरी है। और अगर आप ग्रोइंग इंडिया को देखें तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी है। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आपका रिच इंडिया है, ये एक्चुअली 100-120 मिलियन लोग, दिस विल डबल इन द नेक्स्ट 7 to 8 years. So you will go from 120 million upper and high income people to almost 200 million. आप एक डेवलपिंग देश में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं, जो डबल होने वाली है, और मेरे हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। तीसरी जो मैं बात करना चाहती हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज अ लिटिल बिट टू लर्न अबाउट आवर फैमिली स्ट्रक्चर। तो आमतौर से किसी सोसाइटी में क्या होता है, पहले तो आपकी जॉइंट फैमिली होती है, सबने अपने घरों में देखा होगा। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे शादी कर लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते आगे। उसके बाद पीपल डिसाइड टू बी सिंगल। नाउ एज अ सोसाइटी इवॉल्व्स, द स्ट्रक्चर चेंजेस। अगर आप लेफ्ट में देखें, दिस इज द जर्नी ऑफ द यूएस। नाउ यूएस नेवर हैड अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बट इन 1970 40% हाउस होल्ड्स न्यूक्लियर फैमिली थे, और 15% लोग सिंगल थे। 30 साल बाद न्यूक्लियर फैमिली घट गई तुलना में, और सिंगल लोग बढ़ गए। इंडिया कहाँ है इस कर्व में? इंडिया ने शुरुआत की थी जॉइंट फैमिली से। 2008 तक 1 out of every 3 households was a nuclear household. एक में से 3 हाउसहोल्ड न्यूक्लियर हाउसहोल्ड था, लोग माँ बाप के साथ नहीं रहते थे। 2022 में एक में से 2 हाउसहोल्ड न्यूक्लियर हाउसहोल्ड है। और अगर आप आगे जाने वाले जो नए हाउसहोल्ड्स बन रहे हैं देश में देखें, देन 3 out of 4 हाउसहोल्ड्स आर न्यूक्लियर हाउसहोल्ड्स। अब न्यूक्लियर हाउसहोल्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियर हाउसहोल्ड का मतलब है, और कुछ लोग शायद रिलेट कर पाए, कि जब नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट्स की छत्र छाया से निकलती है तो वो एक्चुअली खर्चा ज्यादा करती है। बहू जब सास की उससे बाहर आती है तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा खरीदती है। कहते हैं कि अगर एक जॉइंट फैमिली में एक इंसान का 100 रुपीज पर पर्सन की स्पेंडिंग होती है, देन इन अ न्यूक्लियर फैमिली पर पर्सन आपकी स्पेंडिंग इज 250 रुपीज। सो इससे दिस न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडिया will create a lot of opportunities in consumption. And we think that everybody in the country we see around us owns a car, owns an AC, has a TV. Reality is कि आज की तारीख में, आज के हिंदुस्तान में 1000 लोगों में से less than 30 people own a car, whereas that number is almost 600 out of 1000 in the US and almost 200 in Thailand. 10% of households have an AC in India. 60% of households in China and Thailand have an AC. Less than 20% of households have a washing machine, whereas nearly every household has a washing machine in many other countries. Only 1 in 2 households have a TV. 100% of households have a TV or multiple TVs in other markets. So consumption की जो opportunity है वो अभी पूरी तरह से निखर के आएगी, और ये न्यूक्लियर फैमिलीज जैसे बनेंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। चौथी बात, और अब मैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में जाना चाहती हूँ, इज
कि मैंने बात की कि मैंने एक ज़माने में सुना है कि आप एलिफेंट पे स्कूल जाती हैं। लेकिन हम जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो हम आमतौर से सऊदी अरेबिया के बारे में सोचते हैं, कितना बड़ा जायंट है क्रूड में। हाल ही में सऊदी अरेबिया एक्सपोर्टेड अबाउट $170 बिलियन ऑफ ऑयल, $170 बिलियन ऑफ ऑयल। Many people know this. Many people don't know कि India has exported 190 billion of IT services. हमारी IT services industry एक giant हो गई है, competing with the best industries in the world. और ये actually हुआ है सिर्फ 30 सालों में। इनफैक्ट अगर आप 1980 1990 की बात करें, तो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती ही नहीं थी। कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो वर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। In 1990 to 2000, offshoring started. उसके बाद 2000s में BPOs and KPOs started. And finally, you have had the rise of e-commerce and hardware products. So we have created a giant in IT. Now, everybody is the next topic that I want to talk about is a topic that everyone is familiar with. समित सबने चंद्रयान के बारे में देखा होगा, चंद्रयान के बारे में सुना होगा, उसकी मून लैंडिंग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी। एंड उस टाइम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून का कंपैरिजन आया था। लेफ्ट में एक कार्टून है जो न्यूयॉर्क टाइम्स पब्लिश्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड देयर वाज दिस नोशन ऑफ एन एलीट स्पेस क्लब ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, और एक हिंदुस्तानी की फोटो दिखाई थी हु वाज स्टैंडिंग विद अ काउ आउटसाइड सेइंग नॉक नॉक, एज इफ India cannot enter this domain. Interestingly, after Chandrayaan successfully landed on the moon, the picture was reversed with developed countries standing outside the door of a space club where the Indian was there with his cow. Now, Chandrayaan is something जिसके बारे में लोगों ने बात की है, देखा है, सुना है, ये सब हुआ है। एंड आमतौर से जब चंद्रयान जैसी चीजें होती हैं तो क्रिटिसिज्म भी आती है कि भाई इतना खर्चा क्यों किया। समवन लाइक बीबीसी कम्स एंड सेज देश ने इतना खर्चा क्यों किया स्पेस के से व्हेन यू आर डीलिंग विद ऑल दीस थिंग्स। मैं आपको एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात बताना चाहती हूँ। चंद्रयान की तो सबने बात सुनी होगी, समथिंग दैट इज अ लिटिल न्यू। You know, in the last 5 years, ISRO, who was responsible for Chandrayaan, has also been launching satellites for private sector. ISRO has launched satellites for more than 20 countries, and now this data is a little old. करीब 200 सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं 20 देशों के लिए। देश ने 1100 करोड़ स्पेस प्रोग्राम से कमाया है। Today, the country has 1,100 startups in the space sector, most of which have been established in the last 2 years. And मेरा मानना है that today India is 2% of the global space economy, and we have an opportunity to be 8% of the global space economy. This is an incredible benefit that we are seeing out of the work that ISRO is doing that will directly impact our economy. Next one is a very interesting thing, or before I go into the data, मैं आपको एक और कहानी बताना चाहती हूँ. So I have a 14-month-old son, and like many grandparents, my parents are also very indulgent, and they keep telling me that आप अपने बच्चे के लिए enough खिलौने नहीं खरीदती. तो one day I was having a discussion with them, and I said कि मैं क्या खरीदूं उसके लिए? What should I buy my son that will make you happy? So they told me that when we lived in the US, my father went to Germany और वो मेरे लिए एक टॉय लेके आए, और उस टॉय में थोड़े छोटे छोटे पेंगुइन्स एक सीढ़ी पे ऊपर ऐसे चढ़ते थे और एक स्लाइड से नीचे उतरते थे, और बड़ा माना टॉय था। तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा कि जब तू यूएस जाएगी तो अपने बच्चे के लिए भी ये टॉय लेके आना। मैंने कहा चलो लेके आऊंगी, आप खुश हो जाओ। फिर मैंने अगले दिन क्या करा, उस टॉय को गूगल में डाला और देखना चाहा कि ये है क्या चीज। I found out that forget having to go to Germany or US, that toy is being made by 3 manufacturers in India at a cost of 400 rupees. Recently, I had the opportunity to go to Chennai, where Mahindra Group has created a research valley, which all of you must see, to look at research for electric vehicles. And I got the opportunity to see how an electric vehicle was assembled from beginning to end. And the only question I had there was one, ये सारे parts आपके चाइना से आते हैं या कहाँ से आते हैं? And what I heard was very interesting.
विद द एक्सेप्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, अब सारे पार्ट्स देश में बन रहे हैं और असेंबल हो रहे हैं। जो कंट्री एक ढंग का टॉय नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी 30 साल पहले, वो आज एक इलेक्ट्रिक कार जो बहुत अच्छी तरह चलती है, अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है। And I think historically India has always been a services driven economy, but the next frontier for the economy in my view is manufacturing. 3 चीजों का हमें फायदा होने वाला है। एक तो आज की तारीख में अगर आप नई फैक्ट्री लगाएं तो सिर्फ आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, विच मेक्स यू कंपेटिटिव विद कंट्रीज लाइक सिंगापुर। दूसरा, आपको मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपकी जो वेज कॉस्ट है वो सबसे कम है। टुडे टू एम्प्लॉय समवन इट टेक्स $160 a month in India, almost 10 times that amount in China. So between the domestic demand, the lowest wage cost and the fact कि आपको टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, बहुत फायदा होने वाला है। आखिरी बात, PLI हैज बीन अ बिग सक्सेस एंड देश का इंटेंट है कि PLI अलग अलग सेक्टर्स में शुरू करें और कुछ सेक्टर्स एक्सप्लोड होंगे। Interesting fact that not many people know is that 70% of the jobs, PLI has created almost 4 lakhs jobs. 70% of those jobs have been filled by women. People ask me where the next $1 trillion of GDP will come. It might come from here. The next theme I want to talk about is, and again, a very important one, and this is close to my heart because my father has been in government. Defense. Air chief has been his dear friend, and for many years we have had this conversation that if India wants to become the third largest economy in the world, then our defense spending will grow. US spends 10 times the amount that we do on defense. China spends 4 times the amount. ऐसे तो डिफेंस स्पेंडिंग तो बढ़ेगी, 77 बिलियन का 4-5 गुना तो होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ राफेल खरीदते रहे और बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते रहे तो कैसे होगा हमारा काम? इंटरेस्टिंगली 7 to 8 years ago, अगर आप सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स का जिक्र करें और लिस्ट देखें कंट्रीज की, तो उसमें हमारा नाम आता था। नाउ 75% of our defense budget is marked for indigenous purchases, basically purchases that are made by local companies. मैं दोबारा ये बात कहूंगी, 7 से 8 साल पहले we were one of the largest importers of defense equipment in the world. Today 75% of our budget is reserved for local purchases. More importantly, हमने $2 billion एक्सपोर्ट किया है। $2 billion के हमने एक्सपोर्ट किए हैं, $6 billion का हमारा टारगेट है। अगेन, कौन सोच सकता है कि जो देश एक टॉय एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता था, वो आज की तारीख में फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेगा और वो फाइटर जेट लोग खरीदेंगे। इनफैक्ट India now exports to 80 countries worldwide, including many countries. In G20, you would have recently heard that US signed a joint venture with HAL, which is one of the top 100 arms manufacturing companies worldwide. और अभी भी हम ग्लोबल आर्म्स मार्केट का बहुत छोटा हिस्सा है। ये एक $200 बिलियन का मार्केट है जिसका हम बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, और मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ छोटा सा यहाँ। मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ तो मैं लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको एक विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करना है इंडिया में तो आप कितने पैसे देते हैं? एंड यूजुअली दे टेल मी 2000, 3000, 4000, 5000. And I tell them that when I was living in the US, I had to get a wisdom tooth extracted, and I paid $13,000 for the same wisdom tooth. Today, अगर आपको US या कनाडा में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको $15,000 देने पड़ेंगे। वही काम $3,000 में इंडिया में होता है। हमें सबको, especially the ladies who might be listening in, might know of relatives who come from abroad to India and stay with us क्योंकि India has some of the most cost-effective medical treatments. Now, many people have looked at us for generic pharmacies, for healthcare, for hospitals. Few people know that India ranks 7th in the world in medical tourism,
and we had 1.4 million medical tourists last year. That could create an economy of $50 billion just in medical tourism. This is an interesting story I want to tell you before I come to the next slide. I went to the US in March this year, and when I was going, I was slated to meet foreign investors. And my team was asking me, what are the kind of questions you're going to get, etc. तो हम लोग तैयारी कर रहे थे. And we fully expected that I would get questions on things like Adani, and a lot of noise was happening in the market then. Interestingly, I didn't get questions. I landed up in the US and I was in a city called San Francisco. और उसी time Silicon Valley Bank failed हुआ. And when I went from college, companies like Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, these were the most predominant employers in the world. Lehman Brothers, CSFB, ये सबसे prominent employers थे. It's funny to know half of them don't exist. Since 2000, you might be surprised to know that more than 550 private banks have collapsed in the US. 550 plus private banks have collapsed in the US. Interestingly, only 17 private banks have collapsed in India. And जो मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी भी इकोनॉमी का growth में, it is very necessary that you have a robust banking and financial services sector. It's absolutely critical. And one of the best things that is happening in India is कि आपके banking sector की health बहुत अच्छी है. In fact, हमारी problems तो 2012-13 में surface हुई जब बड़ा NPA crisis हुआ. RBI ने asset quality review order किया. अभी हमारे बैंकों के NPAs कम हो रहे हैं और बैंकों की हेल्थ बहुत अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है. फाइनली आई थिंक वन ऑफ द नाइस थिंग्स जो देश में हुई है कि एक फॉर्मलाइजेशन हुई है पिछले 5-6 सालों में. साइलेंटली जीएसटी आया है, आधार आया है, यूपीआई आया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो सभी ने सुना है. इस फॉर्मलाइजेशन से क्या हुआ है? 2016 में 24 करोड़ पैन कार्ड थे. It's 60 crores today. 2016 के अराउंड 4 करोड़ इनकम टैक्स फाइलर हो गए. वो बेस ऑलमोस्ट डबल हो गया है. जीएसटी का बेस हैज गॉन अप मोर देन 2 टाइम्स. तो एक पूरा फॉर्मल इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है. इसकी ये भी पावर है और आप में से तो बहुत लोग एसआईपी करते भी होंगे, लेकिन पहले मैं आपको लेफ्ट का डेटा दिखाती हूँ. 2012 में डीआईआई, जिसे डोमेस्टिक निवेशक कहते हैं, वो इक्विटी मार्केट का 10% ओन करता था, फॉरेनर 22% ओन करता था. आज की तारीख में डीआईआई 15% ओन करता है, फॉरेनर 20% ओन करता है. हमारी ओनरशिप एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 50% बढ़ी है, उनकी 10% घटी है. हमने अपने मार्केट को आत्मनिर्भर बनाया. मैंने इस इंडस्ट्री को 2017 में ज्वाइन किया था जब इंडिया की 4,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी. आज देश की 15,000 करोड़ की एसआईपी बुक है. डेटा थोड़ा पुराना है और मेरा मानना है कि 2027 से 28 में देश की 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक होगी. इस एसआईपी बुक से क्या होता है, रिटेल सेविंग्स मार्केट में आती हैं. एंड दिस टाइम जितना फॉरेनर्स ने पैसा निकाला, अगर एसआईपी बुक ना होती तो मार्केट 50% गिरता, लेकिन नहीं गिरा क्योंकि हमने अपने मार्केट्स को आत्मनिर्भर बनाया. हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि हमने ये देखा कि एनएसई 500 के कौन से स्टॉक्स मल्टी बैगर में हैं. मल्टी बैगर वो स्टॉक है जिसने 10 गुना रिटर्न दिया है 2000 से. इट्स रिटर्न 10 टाइम्स सिंस 2000. 54% of the NSE 500 has been a multi-bagger. That is incredible. And if you look at the country that has produced the maximum number of multi-baggers since 2000 among reasonable countries, तो हमारा नाम सबसे ऊपर आता है. I want to summarize with a few thoughts. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी that personally, as someone whose father was a diplomat, I always tell him that, Papa, I wish you hadn't retired because you would have seen an era where forget cows and elephants,
नाउ बाइडन एंड सुनाक आर थैंकिंग इंडिया बिकॉज इंडिया ने एक बड़ी प्लेन डील की और बहुत सारी नौकरियां क्रिएट की. दिस इज समथिंग दैट वी कुड हैव नेवर इमेजिन्ड. द अदर थीम दैट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर आपने ये प्रेजेंटेशन सुना तो मेरे से आमतौर से लोग पूछते हैं, राधिका कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, अभी फार्मा का चलन चला है, अभी टेक करें, क्या करें. एंड इस प्रेजेंटेशन में एक स्टोरी नहीं थी. दिस वाज नॉट सऊदी अरेबिया एंड क्रूड, दिस वाज मल्टीपल स्टोरीज. देश में एक कहानी कैपिटल मार्केट्स की भी है, लेकिन एक कहानी हाउसिंग की भी है. एक कहानी अगर हेल्थ केयर की है तो एक कहानी कंजम्पशन की है. एक कहानी अगर मैन्युफैक्चरिंग की है तो एक कहानी टेक्नोलॉजी की भी है. इंडिया एक सिंगल स्टोरी नहीं है. एंड मैं बार बार कहती हूँ, आप अच्छे सेक्टर पे मत फोकस करिए, आप अच्छी कंपनीज पे फोकस करिए. क्योंकि अगर मार्केट ग्रो होगा तो सारे सेक्टर्स ग्रो होंगे. अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बहुत सारे सेक्टर्स में अंडर पेनिट्रेशन है जहां से आपको ग्रोथ दिखेगी. दूसरी बात, ये जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का वो चलता रहता है कि लार्ज कैप करें अभी या मिड कैप करें या स्मॉल कैप करें. Actually, I think opportunities exist in all market caps. This is some very interesting data that shows you how the definition of large cap, mid cap, and small cap has changed. In 1998, एक average large cap company का size 3,000 करोड़ था. Today, the size of an average small cap is 12,000 crores. Small cap नहीं रहा, mid cap नहीं रहा, large cap mega cap हो गया है, mid cap large cap हो गया है और small cap mid cap हो गया है. इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि मिड कैप कंपनीज ऐसी हैं जिनमें बहुत रिस्क है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पुअर गवर्नेंस है. आज की तारीख में तो मिड कैप कंपनी शुरुआत ही 20,000 करोड़ से करती है. बहुत सारे क्षेत्रों के लीडर्स मिड कैप स्पेस में रहते हैं. तो एक सिंपल पोर्टफोलियो जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल, वो भी बहुत अच्छा कर सकता है. फाइनली कुछ थॉट्स जिनके साथ मैं छोड़ना चाहती हूँ इंडिया के बारे में और निवेश करने के बारे में, एंड उसके बाद आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस. 5 बातें हैं. सबसे पहला, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म. अब ये ऐसी बात है लॉन्ग टर्म जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन एवरी टाइम आई ट्रैवल पीपल आस्क मी अ क्वेश्चन कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम ठीक है या नहीं ठीक है. हमारा एक फंड है जो 2007 में लॉन्च हुआ और कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था फंड लॉन्च करने का. लॉन्च के बाद उसकी एनएवी 10 से 2 हो गई. उस फंड ने भी 14.5% रिटर्न पर ईयर दिया है स्टार्टिंग इन्वेस्टर को, जबकि टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं थी. आप टाइम पे फोकस करिए, टाइमिंग पे नहीं. दूसरी बात इज, आई से नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज ऑप्टिमिज्म एक बहुत जरूरी चीज है. ये देश बहुत केओटिक हो सकता है, एंड इफ यू वांट टू गेट वेरी नेगेटिव, you can get very negative, but it is important to remain optimistic. तीसरी बात का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. चौथी बात जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ इज अबाउट वॉलेटिलिटी. अब मैंने आपको देश की एक बहुत अच्छी पिक्चर दी. आई पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ इंडिया इन द लॉन्ग टर्म. डिस्पाइट दिस, वी हैव एन इलेक्शन कमिंग अप एंड देयर विल बी शॉर्ट टर्म ड्रामा. We are sitting today on a day where markets fell a lot and markets will fall in the short term. In fact, I always tell people who worry about volatility, elections, and all these things to think back to a time in India between 1989 and 1995. Us daran, VP Singh government came on TV and said, effectively nation is bankrupt. Chandrasekhar government आई, राजीव गांधी जी assassinate हुए, नरसिम्हा राव पावर में आए, मंडल कमीशन हुआ, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बाबरी मस्जिद हुआ, करेंसी डिप्रिशिएट हुई, हर्षद मेहता स्कैम हुआ और एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ पार्लियामेंट में. कोई जो बाहर से इस देश को देख रहा होगा ना, वो कह रहा होगा यहाँ तो केओस है. सेंसेक्स वेंट फ्रॉम 700 to 4,000. Chaos is a part of the journey of equity markets. And last thing, जो हम सारी एडवाइस देते हैं सीधी चीजें करने की, डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करने की, एसेट एलोकेशन करने की, बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से एसेट एलोकेशन करें, एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें. ये चीजें अच्छी हैं. अगर आप एसआईपी करते रहेंगे,
एसेट एलोकेशन आपका सही होगा, लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, आपके साथ लंबे समय में बुरा हो ही नहीं सकता, और ये मैं लिखने को तैयार। I want to end with a perspective of India through our films, since it is also an evening. And I think the best way to see how the country has changed is through the lens of our cinema. In 1960s, there was a movie called Mother India, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, where there was an evil money lender. और नरगिस जी एक गाना गाती थी कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो जीना ही होगा, जीवन जहर है, जहर पीना होगा. In 1970s, anti-establishment started and there was a dreaded smuggler. And in 1980s, a movie called Kala Patthar came और लोग कहते थे corporate sector evil है. 1990s में liberalization आई and suddenly foreign products started filling the market and we went off to Switzerland. What was foreign was good. जो बाहर का था वो अच्छा था. 2000 में एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई और दिल चाहता है, बंटी और बबली और बैंड बाजा जैसी, बारात जैसी पिक्चरें बनी, जिन्होंने छोटे शहरों की एस्पिरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की. हमने रियलाइज किया, और ये आदित्य चोपड़ा जी यशराज फिल्म्स के कहते हैं कि हमें देश से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, देश में ही बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट की, बिजनेस की और मार्केट्स की. और अब हम लोग कहते हैं गली बॉय में कि सक्सेस इज एस्पिरेशनल. मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं जहां से भी शुरू कर रहा हूं मैं आगे जा सकता हूं. एंड इंसिडेंटली नाउ अ फिल्म लाइक रॉकी और रानी डज नॉट नीड टू गो टू स्विट्जरलैंड टू बी शॉट. इट कैन बी शॉट इन कश्मीर. सो दुनिया में हम आए हैं और जीना ही होगा, जीवन जहर है, तो अपना टाइम आएगा. दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड आई ट्रूली बिलीव कि अपना टाइम जेन्युइनली आ गया है. With that, I'll stop and hand it over to Bhavesh for questions. Ma'am, you are spot on always with the small stories and data, connecting the dots. 10 on 10. Your presentation is again 10 on 10. Thank you. So quite amazing presentation. काफी सारे questions ऐसे हैं जो लास्ट के 2 स्लाइड में आपने वैसे ही उसके आंसर कर दिए. So I think one of the very question was कि long term is okay. So long term में आपने बहुत ही अच्छा पिक्चर दिखाया है और everybody is aware about कि long term में India is not a country to bet against, right? और निवेश करना जरूरी है. But everybody is again short term के लिए क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि अभी पॉलिटिकल इवेंट आएंगे थोड़े, ग्लोबली थोड़ा टेंशन है, तो व्हाट इज द राइट एलोकेशन टुडे, और आज क्या पोर्टफोलियो कुछ रीबैलेंस करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय करंट एसेट एलोकेशन एट दिस मार्केट्स. सो एनी थॉट्स? I'll take you. See, I think you should always remember my 89 to 94 example, but I'll give you an answer to this. One is election creates short-term volatility in the market, but if you look at the long-term impact on election, utna nahi hota. It's an interesting fact. Indian economy since 1981 has doubled every 6 years. Economy has doubled every 6 years, regardless of which government has been in power. Now, I am not saying good or bad things about this government. I like this government, all of that. Fact is, economy has doubled every 6 years. Maybe with a great government, it will double every 4 years. Dusra, why do we rely on government beyond drama? We rely on it for policy and policy change. If you see, policy change has actually happened in both regimes. UPA के time भी, you had Aadhaar, it was continued. GST की beginnings वहाँ हुई थी, शुरू हुई. Every government loves to do rara, but the reality is very few governments take what the previous guy has done and scrap it completely. वो होता नहीं है आज की तारीख में. So हमारे यहाँ policy continuation actually बहुत अच्छा रहा है. So there should not be any worry about political changes, और जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए. जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म, और ये एक्शन लेने का बायस बहुत अच्छा है कि यार इलेक्शन आ रहा है, कुछ तो करें यार. पोर्टफोलियो ना बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है, बच्चे ने बहुत टाइम से कुछ किताब नहीं, कुछ तो करें. ये कुछ करने की अर्ज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है. राइट. यू आल्सो मेंशन्ड वन फंड जिसका एनएवी 10 रुपए से 2 रुपए हो गया. राइट. सो वन स्टोरी, कुछ लोग ये क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि जब हम निवेश करते हैं ना, तो ज्यादातर दिस इज द ट्रेंड कि लोग गूगल करते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, और जो टॉप रैंकिंग फंड है, सो टॉप रेटिंग या रैंकिंग वाले फंड्स में निवेश करते हैं, और देन obviously they don't get the similar kind of returns very next year,
right? So what should be the ideal thought process by selecting the funds? So I'll tell you what should not be the thought process. Choosing the fund that is the best fund in rank 1 year is the biggest disservice you can do to your money. और मैं ये बड़े खुले दिल से कह रही हूँ. What is the best performing fund in 1 year or 3 years? It is the return of the person who has invested 1 year ago till present. उससे आपकी जर्नी का क्या लेन देन है? It's like what it is the equivalent of buying a washing machine and saying कि एक बंदा है जिसने वॉशिंग मशीन खरीदी है आज से 1 साल पहले, वो उसका क्या एक्सपीरियंस था. That doesn't determine a fund to buy. And very often exactly जो आप कह रहे हैं वो होता है. हम ऐसा फंड खरीदते हैं और वो रिवर्स हो जाता है. इनफैक्ट हमने एक स्टडी की, ये वेबसाइट्स दे हैव दिस 5-star फंड्स, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं, एंड देन यू हैव 4-star फंड्स जो अच्छा करते हैं लेकिन ऐसी लिस्ट में नहीं आते. Actually, if you were holding on to a fund that is 4-star, that is long-term consistent, it does better than these 5-star funds. So you should look at few things. One, you should understand fund क्या कर रहा है, उसका स्टाइल क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि 5 मिड कैप फंड एक ही चीज नहीं करते और उसका पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए. लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए. एक चीज होती है जिसे हम रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं, वो देखना चाहिए. फंड हाउस से आप कितना कंफर्टेबल हैं, एंड ऑफ कोर्स एनजे रिकमेंडेशंस देता है, सो दैट कैन बी वेरी इंस्ट्रक्टिव, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का प्रोसेस क्या, आप कितनी रिसर्च करते हैं. बट सर्टेनली लास्ट 1 year रिटर्न्स बिल्कुल मत देखिए. And one more last question, ma'am. So we have a data. काफी लोग जो वो SIP शुरू करते हैं, बट इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो डिसकंटिन्यू होता है या उसमें इंक्रीमेंटल SIP नहीं फिर ऐड होता है. सो व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच कि SIP का बेस्ट एडवांटेज और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं? Don't stop your SIP in a down market. Again, it is the biggest disservice you can do, because why do you do an SIP? You do an SIP क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए. जब मार्केट गिरता है तो आपको एक्चुअली यूनिट ज्यादा मिलते हैं. अगर मैं कहूँ कि आईफोन 30% सेल पे मिल रहा है तो बहुत लोग दुकान पे भागेंगे और कहेंगे आईफोन खरीदो. लेकिन MF का NAV 30% गिरा है तो कोई नहीं भागता. यू आर बाइंग द सेम थिंग चीपर. दैट इज इट. एंड मैंने देखा है कि अगर आप 10 साल की SIP करें, हमारे पास डेटा है, और मार्केट कुछ ना करे ना, 0 to 5% रिटर्न दे, तभी भी आपका 10% से ज्यादा रिटर्न होता है. विच इज वाई आई सेड द पॉइंट इन माई प्रेजेंटेशन, ढंग के फंड में SIP अगर आप लंबे समय तक करें, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता. डाइवर्सिफाई करें, एसेट एलोकेशन करें और लॉन्ग टर्म छोड़ दें. दैट्स द सिंपल मंत्र. Great, ma'am. Thank you so much for sparing your valuable time. I know that you are not at office, but still you are sparing the time. So thanks a lot for the wonderful presentation. You are spot on as always. Listening to you is always feel blessed. Thank you so much, ma'am, and thank you all the investor for joining on time and listening to this presentation. हमारे जो भी पार्टनर्स है उनके इनविटेशन के ऊपर आप आज यहाँ पर जुड़े हमारे साथ, और भारत एक नया भारत जो बनने जा रहा है और बन चुका है ऑलरेडी, राइट, उसके बारे में मैम ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव. We should always be long-term investor in the equity market. Never bet against India. Diversify, asset allocation करिए. Simple mantras, 10 on 10. So we wish you again very best on your investments and good health. Thank you so much, all the investors. Thank you, ma'am. We can conclude the session as of now. See you soon. Thank you.